Hello everyone, I hope you all are safe and doing really very well. In this video, we will understand some more accounting concepts in continuation to our previous video. In our last video, we covered three accounting concepts, which was the entity concept, which meant that entity or the business is separate from its business owner. Then it was money measurement concept, which meant that all the transactions which can be measured in terms of money will only be recorded in the books. And the third was periodicity concept, which meant that the transactions are booked, the accounting is done, or the financial statements are prepared for a particular accounting period. Now we will understand some more accounting concepts in this video. We'll understand three more concepts. First is accrual concept, then going concern concept, and the third is matching concept. In our first video, we understood certain fundamental accounting assumptions, जिसमें से मैंने दो accounting assumptions बताई थी, accrual and going concern assumption. The same we will discuss in this video also. These two are assumptions as well. That means the user, while reading the financial statement, assumes कि ये basic assumptions use करी गई हैं financial statements बनाते हुए, वो assume करते हैं. And these are concepts also. Accrual and going concern both are concepts as well. Starting with accrual concept. जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि all the transactions, all the business transactions which have occurred in a particular period, in a particular accounting period, whether or not the same has been taken place in terms of money, if that particular business transaction has incurred or has occurred in a particular accounting period, it will be booked in the books, irrespective of the fact कि मनी में वो ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं हुई है. डोंट गेट कंफ्यूज. मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि वो मनी में मेजर नहीं हो सकती है. कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो मनी में मेजर हो सकती है वही बुक की जाएंगी, लेकिन वो हो सकता है कि आपने मनी में अभी लेन देन ना किया हो. अगर वो ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर पीरियड की है तो वो उसी पर्टिकुलर पीरियड में रिकॉर्ड की जाएगी, भले ही आपने उसका पैसा अगले मंथ चुकाना हो या आपने लास्ट मंथ ही चुका चुके हो, लेकिन वो इस पीरियड को पर्टेन करती है तो वो इसी पीरियड में बुक की जाएंगी. ये कॉन्सेप्ट, ये अजम्पशन मैंने पहले भी समझाई है, फिर से मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपीज़ की सेल करी इन अ पर्टिकुलर मंथ से अप्रैल मंथ में आपने 100 रुपीज़ की सेल करी बिजनेस में. 100 रुपीज़ के बदले कस्टमर ने केवल 50 रुपीज़ की ही पेमेंट करी और बाकी 50 रुपीज़ बोला कि मैं नेक्स्ट मंथ में पे करूँगा. अब क्या मैं अपनी सेल्स 100 से रिकॉर्ड करूंगी कि मैं 50 से रिकॉर्ड करूंगी, बिकॉज मुझे तो सिर्फ ₹50 मिले हैं, 50 रुपये मुझे मिले ही नहीं है. सो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट आप पूरे 100 की सेल अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज आपने 100 रुपीज़ का गुड्स, 100 रुपीज़ का माल अपने बिजनेस से, अपने गोडाउन से, फैक्ट्री से निकाल के कस्टमर को बेच दिया है. वो गुड्स, वो माल अब कस्टमर के पास है, कस्टमर उसे यूज़ कर रहा है, उसके सारे बेनिफिट्स वो ले रहा है, सारे रिस्क उसके हैं, इनवॉइस रेज हो चुका है, सिर्फ उसने पैसे नहीं चुकाए हैं, वो कह रहा है वो अगले मंथ चुका देगा. तो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, अक्रूअल कंसेप्ट, मैं पूरे 100 रुपीज़ की सेल उस पीरियड में रिकॉर्ड करूंगी, बिकॉज वो ट्रांजेक्शन इनकर हो चुकी है, अकर हो चुकी है, बस पैसा नहीं मिला है. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि पैसा मिलेगा और पैसे में मेजर होना, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. आपकी सेल कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी but has not been received in money, which will be received in the coming month. So that is why this particular transaction of sale, according to this concept, will be recorded in the books. So this is accrual concept, that all the transactions which belong to a particular period, irrespective of the fact that same has taken place in terms of money or not, will be recorded in the accounting books of that particular period. I hope I'm clear. Next is going concern concept. Going concern assumption was also understood in our first video, जहाँ मैंने ये बताया था कि normally the user assumes that financial statements have been prepared on the basis of going concern assumption. Same is the concept. Business financial statements are prepared with the assumption that business will continue for a foreseeable future. There is no intention, there is no necessity to close the business or to curtail the activities of the business. ये assumption बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपने बिजनेस को कमिंग ईयर में या नेक्स्ट 2 ईयर्स में क्लोज करने की सोच रहे हो, तो आप आज खड़े होके आज इस फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल्स अलग तरीके से बनाओगे, उसकी प्रेजेंटेशन अलग होगी. लेकिन अगर आपकी ये इंटेंशन है कि मेरा बिजनेस आज है, कल है और हमेशा रहेगा, इसी इंटेंशन के साथ आप चलोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो प्रेजेंटेशन अलग तरीके से होती है. जैसे कि
मेरे बिजनेस मतलब द बिजनेस ओनर हैज गॉट अ मशीनरी फॉर एग्जाम्पल ऑफ ₹5 लाख। अब अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे चलें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये मशीनरी विल बी शोन एट कॉस्ट। एट कॉस्ट मीन्स कि 5 लाख रुपीज पर शो होगी कि मेरे पास एक एसेट है मशीन जो कि 5 लाख जिसकी वैल्यू है। लेकिन अगर आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेसिस पे नहीं चल रहे हैं, अगर ये है कि मेरा बिजनेस नेक्स्ट कमिंग ईयर में मैं बेचने वाला हूँ या ये रीजंस की वजह से मैं अपना बिजनेस बंद करने वाला हूँ, तो मैं अपनी मशीनरी को 5 लाख से ज्यादा या 5 लाख से कम की वैल्यू पे शो कर सकती हूँ। बिकॉज जो एक्चुअल सेल प्राइस है मशीन का हो सकता है वो 5 लाख से कम हो या 5 लाख से ज्यादा हो। तो उसके बेसिस पर द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट के बेसिस पर प्रेजेंटेशन होगी। तो प्रेजेंटेशन बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है अगर आप ये अजम्पशन या ये कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं तो। सो दिस इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि आपका बिजनेस आज है हमेशा है और चलता रहेगा, कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, देयर इज नो नेसेसिटी टू क्लोज द बिजनेस। दिस इज अ सेकेंड कॉन्सेप्ट कॉल्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। Let's move towards our third concept of this video, which is matching concept. To understand matching concept, you must understand accrual concept जो कि हमने आज समझा, and the periodicity concept जो हमने previous video में समझा था। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमेशा एक अकाउंटिंग पीरियड या पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनती है। मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज दैट ऑल द एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड in a particular accounting period that matches the revenue of that particular period will only be recorded in the books, will only be reflected in the profit and loss account. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, 100 रुपीज की सेल हुई इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सेल आपको मनी में मिली है या नहीं मिली है। 100 में से मुझे 50 रुपये इस मंथ मिले, 50 नेक्स्ट मंथ में मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 100 रुपीज की सेल रिकॉर्ड करी उस अकाउंटिंग पीरियड में बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। 100 रुपीज की सेल से मैचिंग मैंने जितने खर्चे करे हैं उन खर्चों को मैं उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करूंगी, इररिस्पेक्टिव कि मैंने उन खर्चों को कैश में इनकर करा है या नहीं करा है बेस्ड ऑन अक्रूवल कंसेप्ट। आपने कुछ खर्चे किए, पैसा नहीं पे किया, पैसा आप बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में आप पे करेंगे, वो सारे खर्चे मेरी उस सेल से रिलेटेड है, तो मैं उन सारे खर्चों को उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में बुक करूंगी। दिस इज मैचिंग कॉन्सेप्ट कि आपके एक्सपेंसेस शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। अब ये भी हो सकता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर खर्चा एक मंथ से ज्यादा मंथ के लिए पे कर दिया। मतलब अगर आप पर्टिकुलर मंथ की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपने 2 महीने का रेंट एक साथ इसी मंथ में पे कर दिया, या 2 महीने का मटेरियल या ज्यादा मटेरियल आपने इस मंथ परचेज कर लिया, उतना मटेरियल यूज नहीं हुआ है गुड्स को बनाकर सेल आउट करने में इस मंथ में। तो जितना मटेरियल सेल से रिलेट नहीं करता है, जो मटेरियल यूज नहीं किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उतने मटेरियल का खर्चा आई विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। भले मैंने उसके लिए कैश में पे कर दिया, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरे रेवेन्यू को मैच नहीं करता है। वो खर्चा मेरे आगे नेक्स्ट मंथ में होने वाले रेवेन्यू या सेल को मैच करेगा, तो मैं उस मंथ में उस खर्चे को रिकॉर्ड करूंगी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप ज्यादा पे कर रहे हो कि आप पे नहीं कर रहे हो, वही खर्चे जो मेरे रेवेन्यू से मैच करेंगे विल बी बुक्ड। सिमिलरली अक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस पर, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में मेरा जो भी रेवेन्यू इनकर हो रहा है, भले मुझे उसका पैसा मिल रहा है इस मंथ में या नहीं, इस पीरियड में या नहीं, मैं उस सेल्स को रिकॉर्ड करूंगी। तो सेल्स और रेवेन्यू शुड मैच ईच अदर on the basis of matching concept following accrual and periodicity concept. So basically these three concepts go hand in hand. Accrual, periodicity and matching concept go hand in hand. हो सकता है there are expenses which do not directly match with your revenue but are important but are necessary to be incurred in order to produce goods and in order to make sales. जैसे कि एम्प्लॉयज को सैलरी देना हुआ या फिर रेंट पे करना हुआ, आप किसी जगह पर किस पर्टिकुलर फैक्ट्री में अपने गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, वहाँ का अगर आपको रेंट देना है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, वो डायरेक्टली आपके रेवेन्यू से लिंक्ड नहीं है, लेकिन वो एक पीरियोडिकल एक्सपेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट वो खर्चा उस पीरियड को बिलोंग करता है और वो खर्चा भी होना ज़रूरी है, अदरवाइज हो सकता है कि आपकी सेल्स रुक जाए। तो उन खर्चों को भी मैं रिकॉर्ड करूँगी।
So expenses are directly linked to revenue or maybe indirectly linked to revenue. In both cases, it will be booked in the books. Some expenses are directly linked with the revenue, directly connected with the revenue. Those expenses will be recorded in that particular period. So this is a third concept of today's video, which is matching concept, that all expenses matching to the revenue of a particular period should only be booked. I hope I am clear with all these three concepts: accrual, going concern, matching concept. If you have any doubts related to the concepts which we discussed in today's video, please drop me a comment. Please drop me your query in the comment box. And now it's time to share my accounting story with you all, how the process to accounting, how the journey to this career of accounting actually began, और फिर मैंने कैसे step by step आगे बढ़कर मैंने अचीव किया. आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम वर्किंग टुडे. तो मैंने ये सब कैसे अचीव किया. सो दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो. सो अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि द जर्नी टू सी ए वॉज क्वाइट डिफिकल्ट. बहुत ही फाइट हुई, स्ट्रेस हुई, लेकिन वंस आई एंटर्ड, वंस आई चोज दिस डिसीजन, वंस आई चोज दिस फील्ड ऑफ सी ए, मैं फुली डिटर्मिन्ड हो गई, फोकस्ड हो गई. मैंने नहीं परवाह की कि लोग क्या कह रहे हैं. मैंने अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करा, मैं बिल्कुल फोकस होकर इसमें लग गई थी. अब इट वॉज टाइम फॉर द एंट्रेंस एग्जाम. CPT होता था उस टाइम पे, तो CPT का एंट्रेंस एग्जाम दिया, प्रिपरेशन करी. उसमें बेसिक अकाउंट्स थी, स्टैटिस्टिक्स थी, लॉज थे, आई थिंक मैथ्स भी थी. तो पढ़ाई करी, एग्ज़ाम दिया. एग्ज़ाम देने के बाद आई थिंक नेक्स्ट वीक में या सेम डे और नेक्स्ट 2 days बाद, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली, पता चला कि पेपर लीक हो गया था. तो वो एग्ज़ाम को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया. आई वॉज रियली डिसहार्टेंड. मैंने कहा ये क्या हुआ, इतनी पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ था, ये क्या हुआ, पेपर ही लीक हो गया. आई वॉज रियली डिसहार्टेंड. बहुत बुरा लगा. फिर से स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, पेपर देना पड़ेगा. 2 या 3 महीने आई थिंक डिले हो गई थी जर्नी. वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग था. मेरी तो कई फ्रेंड्स ने CA ही छोड़ दी थी कि उनको लगा कि कौन अपने 3 महीने 4 महीने वेस्ट करेगा. उन लोगों ने अगला फील्ड चूज़ कर लिया. देवर मे बी वो इतने शायद कॉन्फिडेंट ही नहीं थे अपने डिसीजन को लेकर. लेकिन मैंने अपने आप को फोकस रखा. मैंने अपने आप को नहीं टूटने दिया. मैं फोकस थी कि CA तो करना है. नाउ आई हैव चोजन दिस फील्ड. मुझे प्रूव करना है कि मैं CA कर सकती हूँ. मुझे अपने पेरेंट्स को लेट डाउन नहीं करना है. देयर इज नो लुकिंग बैक नाउ. आई हैव टू डू CA. फिर क्या था, मैं फिर से पढ़ाई में लग गई. आई थिंक 2 या 3 महीने बाद पेपर फिर हुआ. मैंने फिर दिया एंड पेपर अच्छा हुआ एंड आई स्कोर्ड, आई थिंक मोर देन 70% आई स्कोर्ड. तो आई स्कोर्ड गुड परसेंटेज. आई वॉज रियली हैप्पी. द रिजल्ट वॉज गुड. आई वॉज हैप्पी. सो ऐसी हर्डल्स, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप कुछ चूज़ करते हो, कुछ डिसीजन लेते हो लाइफ में आगे बढ़ने का. हमेशा आपको कुछ ना कुछ हर्डल्स, प्रॉब्लम्स दिखेंगी. बट डजेंट मीन कि आपको रुकना है. इट डजेंट मीन कि आपको डीमोटिवेट होकर बैठ जाना है. रुको, थोड़ी देर रुको, सोचो और फिर आगे बढ़ो. डोंट डीमोटिवेट योर सेल्फ. अगर कुछ चूज़ कर लिया है, एकदम सही डिसीजन स्टडी करके, गो फॉर इट. Don't stop because of any person, because of any reason or any hurdle. और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी. So that is all for today's video. I hope you all liked my video. Thank you for listening to me. Do like my video. Do share my video. Please subscribe to my channel if you have not subscribed earlier. Thank you.